वेलकम लॉ आज स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वर्कशॉप कंपनी लॉ के ऊपर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टूड लाइक हाउ दिस कंपनी लॉ कम इनटू एक्सिस्टेंस। अंडरस्टूड फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ दिस कंपनी लॉ कम इनटू एक्सिस्टेंस। बेसिकली कंपनी लॉ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड कमर्शियल लॉ. It's a combination of contract law and commercial law, and together with the creativity of banker and lawyer, this company law come into existence. Basically, if you remember the case law of Solomon versus Solomon in the year 1897, that was a landmark case which tell that company is a separate legal entity, means ownership is separate person and company is separate person. That case law defined the rules, regulation and bylaw of company. That case law defined the nature of company. What company is a separate legal entity. As company is a separate legal entity, so it cannot enter into any contract by itself. So it needs some person, those who would be working on behalf of company, and these persons are generally the agent of company. Now the question arises, who are the agent of company? This agent are generally board of director, members and employee who enter into contract on behalf of company. कंपनी अपने बिहाफ में कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करती है. उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं और मेंबर्स होते हैं जो कंपनी के बिहाफ में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं. ठीक है. सो इट इज ट्राई टू मीन्स हियर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी इज आल्सो इम्पोर्टेंट. द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आल्सो प्ले a crucial role. It is understood company has to various law. If you remember section 3 subsection 1 clause 1, it speak about what companies formed and registered under Company Act 1956. The company is formed and registered under Company Act 1956 or any of the existing Company Act. यहाँ पे दो बातें बहुत ज़रूरी होती हैं. जब मैंने कहा company is formed and registered under Company Act 1956 मतलब existing Company Act, और जब मैंने कहा और existing Company Act, सेकंड दोबारा मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ. existing company को clause 2 में डिफाइन किया गया है. Section 3 subsection 1 clause बोलता है company is formed and registered under this act or any existing company act. जब मैंने कहा under this act means company act 1956, और जब मैंने कहा existing company act जिसे डिफाइन किया गया है section 3 subsection 1 clause 2 में. यहाँ सिंपली वहाँ पे लिखने के clause 2 को भी करेक्ट है. Existing company means any company which is formed and registered under any of the previous company law. जरूरी तो नहीं कंपनी एक्ट जो 1956 में चालू हुआ था, लागू हुआ था, उस समय स्टार्ट हुआ. कंपनी एक्ट बहुत पुराना है, बहुत पहले से चलता आ रहा. बट मेन इनकॉर्पोरेशन कब हुआ, फॉर्मेशन कब हुआ, एग्जैक्टली कब वो एग्जिस्टेंस में आया, लीगल तौर पे 1956 में आया. उसके पहले भी कंपनी लॉ चला. एग्जिस्टिंग कंपनी की डेफिनेशन में हमने डिफाइन ये किया जो भी कंपनी पहले से एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन कर रही है, उसे डिफाइन. सी देयर आर n नंबर ऑफ डेफिनेशन गिवन बाय वेरियस ऑथर इन वेरियस थिंग्स. बहुत सारे ऑथर हैं, बहुत सारे थिंकर हैं जिन्होंने बहुत सारे डेफिनेशन डिफाइन की है. जैसे कि जस्टिस मार्शल ने डिफाइन किया कंपनी इज व्हाट आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन? मीन्स कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ. एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट ऑल्सो एंड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ. जब कंपनी लॉ के थ्रू बनती है तो वो कंपनी लॉ के थ्रू मीन्स कंपनी इज नॉट हैविंग एनी फिजिकल एक्सिस्टेंस. कंपनी इज इंटेंजिबल इन नेचर. If you remember definition of justice states, उन्होंने कहा company is what association of person. Association of person क्या होता है? Means group of person those who have come together, joined together for achieving common goal and objective. Association of person का मतलब person can be artificial person or natural person. Natural person means real person. Artificial person means so company is what association of person. But जो हमें definition याद रखनी है वो याद रखनी है डेफिनेशन ऑफ जस्टिस लिंडले. जस्टिस लिंडले की डेफिनेशन आपको याद रखनी है. अब मैं आपको बहुत सिंपल समझाने वाला हूँ, उसे ध्यान से समझिएगा. कंपनी क्या है, इधर देखिए. कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है. क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन. ये जो एसोसिएशन है ये क्या कंट्रीब्यूट करती है? मनी और मनी वर्थ. दिस एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंट्रीब्यूट मनी और मनी वर्थ. This money or money worth is called what? Capital. This money or money worth को हमने क्या बोला? Capital बोला. और this association of person is called members. This association को हमने क्या बोला? Members बोला. अब जो ये बंदे, जो ये members capital contribute कर रहे हैं, इससे
से क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे, ट्रेड करेंगे. सो दे विल गो फॉर डूइंग एनी बिजनेस एक्टिविटी और ट्रेड. अब ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे तो क्या होगा? इफ ए कंपनी डू एनी बिजनेस और ट्रेड, either they will be going to have profit or loss. If the company had profit, they will share between all the members. तो मैं बहुत सिंपल आपको ये डेफिनेशन एक्सप्लेन करने वाला हूँ जस्टिस लिंडले की, जहाँ पे 7 पॉइंट में डेफिनेशन डिफाइन है. अब जैसा मैं बोलूँगा वैसे याद रखोगे तो बहुत सिंपल होगा. फर्स्ट, कंपनी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन. दिस एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंट्रीब्यूट फॉर मनी और मनी वर्थ. दिस मनी और मनी वर्थ इज कॉल्ड कैपिटल. This association of person is called member. The person who contribute capital, they do any business or trade activity. Okay, if they do business or trade activity, they will be going to have profit or loss. This profit is being distributed between members in terms of shares. ये 7 पॉइंट है. याद रखने के लिए आपको करना क्या है? सिर्फ एक पिरामिड ड्रॉ करना है. Means what you have to do? You have to draw a pyramid where in one side you have to write association. क्या है? Association of person. कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हैं? मनी और मनी वर्थ. दिस मनी और मनी वर्थ इज कॉल्ड कैपिटल. कैपिटल से क्या करेंगे? वो ट्रेड करेंगे. ठीक है. एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज कॉल्ड मेंबर्स. जब ट्रेड करें तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है. प्रॉफिट क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा मेंबर्स के बीच में इन टर्म्स ऑफ शेयर. 7 पॉइंट डेफिनेशन याद रहेगी. वेरी इजी, वेरी सिंपल. यस और नो? Yes, sir. सो हियर वी अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ कंपनी. हमने अभी तक पढ़ा कंपनी क्या होती है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड बाय लॉ. एज इट इज क्रिएटेड बाय लॉ, इट आल्सो गोइंग टू एग्जिस्ट और एंड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ. है ना? हर एक कंपनी को रजिस्टर करना होता है. कंपनी एक्ट 1956. द रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी कंपनी इज वेरी एसेंशियल. इफ द कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड, इट विल बी कॉल्ड इलीगल कंपनी. इफ द कंपनी इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1956 1956, it would be called illegal company. ठीक है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 11 में पढ़ने वाला है. इतना याद रहेगा. सो कंपनी गेट स्टडीड अबाउट सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में क्या बोला गया? कि कंपनी व्हिच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्ट और एक्जिस्टिंग कंपनी. एक्जिस्टिंग कंपनी डिफाइन किया गया क्लॉज 2 में. मींस कंपनी फॉर्म और रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ, कोई भी पुरानी लॉ. सेकंड हमको याद रखना है जस्टिस लिंडले की डेफिनेशन, जो कि बहुत जरूरी है. 7 पॉइंट में याद रहेगा. बोधी, रिमेंबर? Should we proceed forward? Yes. So next, moving to characteristic of company which is being defined under section 34. अब इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है. पहले मैं आपको बताऊं कि इसको याद कैसे रखना है, या मैं सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूं. See, there are 10 characteristics of companies being given over there. If someone asks me, tell me the characteristic of company, I will say 1. Perpetual succession, incorporate association, common seal, it can be sued, है ना? Separate property, separation of ownership, separate legal entity. Remember, अगर इस 10 पॉइंट को याद रखना है, I'm telling you one very simple shortcut. Sit and clap. S-I-T, sit and clap. This is the mnemonic by which you would be going to remember 10 points of characteristic of company. Yes, this is the mnemonic by which you would be going to remember 10 points of characteristic of company. Sit जब मैंने बोला S-I-T, S से क्या है? Separate property. Remember first characteristic. Second, separation of ownership. Second. Third, separate legal entity. I से क्या निकल के आ रहा है? Incorporated association. T से transferability of share. Clap. C से capacity to sue and to be sued. Second था common seal. L से limited liability. A से association of person और artificial person. ठीक है? And B से perpetual succession. ये बहुत सिंपल निमोनिक है. अगर इसे याद रखोगे तो sit and clap. बैठना है, ताली बजानी है, कंपनी लॉ पढ़ते पढ़ते. So let us discuss one by one what this characteristics speak about. इसे हम सिंपल बोलते हैं, निमोनिक बोलते हैं, NEMONIC, जो कि बहुत इजी तरीका होता है किसी भी मेन टर्म्स को याद रखने का. पहला मैंने बोला सेपरेट लीगल एंटिटी. जैसा कि हम सब जानते हैं, इसके ऊपर बहुत फेमस केस लॉ है सोलोमन वर्सेस सोलोमन का, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टूड व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? इन सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज सेपरेट पर्सन एंड ओनर इज सेपरेट पर्सन. मींस कंपनी की खुद की अपनी आइडेंटिटी है और
ओनर की अपनी खुद की आइडेंटिटी है. कंपनी इज टोटली सेपरेट पर्सन एंड ओनर इज सेपरेट पर्सन. मींस ए मेंबर ऑफ कंपनी कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी. मेंबर जो होता है वो कंपनी के बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है. सेकेंड, जब मैंने बोला सेपरेट प्रॉपर्टी, मींस द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी इज सेपरेट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ ओनर इज सेपरेट. ऑल्दो दिस ओनर दिस मेंबर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी. जो मेंबर्स होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, मालिक होते हैं. बट फिर भी कंपनी की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी और ओनर की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होगी. इस पे हमने केस पर डिस्कस किया था, मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं. एक और केस तो है ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आगे. 3 केस सॉल्व करने वाले हैं. थर्ड, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. अब मुझे बताइए कंपनी का मालिक कौन होता है? टेल मी, हु इज द ओनर ऑफ कंपनी? शेयर होल्डर. द शेयर होल्डर और मेंबर्स. ठीक है, शेयर होल्डर कौन होते हैं? मेंबर्स होते हैं. ये मेंबर किसको अपॉइंट करते हैं कंपनी की देखरेख करने के लिए, कंपनी को मैनेज करने के लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. सेपरेशन ऑफ ओनरशिप, the members are the owner of the company, they are called shareholder. The shareholder are the owner of the company, they are called members, and they appoint a person called director or board of director to look after the management of company. So 3 point थे. First, separate legal entity, means company की entity separate है और owner की separate है. Second, separation of ownership, means company की property separate है and owner की property separate है. Separation of management means the management will be looking after by board of director and owner are who? Shareholders, member. Separate property means company की property अलग है और member की property अलग है. Separation of ownership and management मतलब ownership किसकी है? members की, shareholder की. Management किसका है? board of director का, जो manage करते हैं company की day to day activity. This board of director looks after day to day affair of the company. S का हमने डिस्कशन किया. I को मैंने डिफाइन किया था इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. शुरू से मैं बोलते आ रहा हूँ, कंपनी शुड बी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड. कंपनी शुड बी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1956. इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी की रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है कौन से एक्ट में? कंपनी एक्ट 1956. ध्यान रहेगा. इनकॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी की रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विच एक्ट? 1956. मींस कंपनी वाज रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 1956. नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर. जैसा कि आपको पता है देयर आर n नंबर ऑफ कंपनी. पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी होती है, सब्सिडी कंपनी होती है. बट यू रिमेंबर देयर आर 2 मेन कंपनी. वन इज पब्लिक कंपनी, सेकंड इज प्राइवेट कंपनी. ये 2 मेन कंपनी होती है, बाकी सारी होती है बट ये 2 मेन. तो इन पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. इन पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. रीजन क्या होता है? पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी होती है. जितनी भी स्टॉक मार्केट में कंपनियां हैं BSE NSE में सारी लिस्टेड कंपनी है. दे आर पब्लिक कंपनी. उनकी ट्रेडिंग करते हो नहीं करते हो? आप परचेस करते हो, सेल करते हो नहीं करते हो? करते हैं. शेयर्स की परचेस सेल करते हैं. जैसे लिस्टेड कंपनी देयर शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. प्राइवेट कंपनी क्या होती है? घर की कंपनी होती है. वो लोग आपस में जुड़े कंपनी खोल दी. ठीक है. प्राइवेट कंपनी के शेयर में कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है ट्रांसफर करने की. देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शन फॉर ट्रांसफर ऑफ शेयर इन प्राइवेट कंपनी. Private company can't freely transfer the share. There are certain restrictions which is been imposed on private company for transfer of share. Clear? Agree? SIT, separation of ownership, separate property, and then separation of what? Separate legal entity. I से क्या मैंने बताया था? Incorporated association. इसे transferability of share. सेट के बाद next क्या था? कैपेसिटी टू sue. Sue means वो रखने का सदी का sue नहीं है, हमें वो याद रखना नहीं है. ठीक है. Sue means you can sue a person in the eyes of court. Eyes of court means contemplation of court. Means आप कंपनी को sue कर सकते हो, ना कि कंपनी के मेंबर्स को sue कर सकते हो. Similarly कंपनी आपको sue कर सकती है on behalf of company. Second का common seal. हमने डिस्कशन किया था common seal should be made up of metal. Common seal किसकी बनी होनी चाहिए? मेटल की बनी होनी चाहिए. The common seal there must be name of the company, place of the company and date of incorporation. Common seal में company का नाम, place and incorporation की date mention होनी चाहिए. Usually company use the common seal for signing what? Signing what? Share certificate, share warrant and share certificate,
signing share certificate, share warrant and power of attorney. ठीक है, three conditions are there. Common seal must carry the what? Name of the company, place of the company and date of incorporation. Second, common seal must be made up of metal, not rubber stamp. And third, common seal is being used for signing share certificate, share warrant and power of attorney. So capital judicial and judicial. Second, common seal L. ये सबसे important point है मुझे को याद, like we have to remember, like utmost important. L से what? Limited liability. Liability of member is being limited. As we know, there are two kinds of company: public company and private company. Let us understand the liability of company in terms of different bases. First, limited by share. There are three kinds of basis by which the liability of members is limited. One, limited by share. Second, limited by guarantee. And third, limited by share and guarantee. Then it comes unlimited liability. First of all, understood what do you mean by limited by share. So liability of company is limited to the face value of share. जैसे मान लो एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपीज है, ठीक है, लेट अस अज्यूम द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 रुपीज एंड इफ यू आर पेड 80 रुपीज, आपने कितना पे कर दिया है? 80 रुपीज पे कर दिया. द कंपनी कैन कॉल द रिमेनिंग अमाउंट. द कंपनी इज हैविंग पावर टू कॉल रिमेनिंग अमाउंट. रिमेनिंग अमाउंट ऑफ व्हाट? 20 रुपीज है ना. कंपनी वो 20 रुपये आपसे वापस मंगवा सकती है. जिसे हमने डिफाइन किया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. अब मुझे एक बात बताना, प्रैक्टिकली ऐसा होता है या नहीं होता? टेल मी, दिस थिंग हैपन और नॉट? नो. जब भी आप शेयर की ट्रेडिंग करते हो, डिड यू पे एनी कॉल और डायरेक्टली यू पे द कंप्लीट अमाउंट? व्हेनेवर यू बाय एनी शेयर थ्रू आईपीओ और ऑनलाइन परचेज और ऑफलाइन परचेज, either you pay in call or you pay in full. You pay in full. 100 रुपीज का शेयर तो 100 रुपीज पे करोगे, 1000 रुपीज का शेयर तो 1000 रुपीज पे करोगे. यू डोंट पे एनी कॉल. आगे चल के ये बंद होने वाला है. अभी बुक्स में लिखा है तो पुराना हो गया, बट हमको पढ़ना है समझने के लिए. व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड बाय शेयर मींस लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर. जितना अमाउंट पे नहीं किया है उतनी कंपनी की लायबिलिटी होगी. किसकी लायबिलिटी होगी? उतनी शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी होगी पे करने की किसको? कंपनी. सेकंड था लायबिलिटी लिमिटेड बाय गारंटी. Here the liability of member is related to the guarantee which they have taken against any damages or against any claim. तो liability limited by guarantee arise कब होगी? जब कंपनी वाइंड अप होगी तब arise होगी ना. मान लो दो पार्टनर है, ठीक है, 2 पार्टनर्स आर देयर, 2 मेंबर्स आर देयर एंड दोनों ने प्रॉमिस किया अगर कंपनी डूबती है आई वुड बी गोइंग टू पे 1 लाख रुपीस. क्या प्रॉमिस किया है? इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी मींस लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, आई वुड बी गोइंग टू पे 1 लाख रुपीस. अब जब कंपनी डूबेगी, वाइंड अप होगी, तब तो पे करेंगे ना. उसके पहले पे करेंगे? नहीं करेंगे. मींस लायबिलिटी विल बी ओनली अराइज व्हेन इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, not till going concern. मींस कंपनी existing till liability doesn't arise. थर्ड था लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर एंड गारंटी. सिंपल सा है, दोनों का कॉम्बिनेशन है. जितना भी अनपेड अमाउंट है शेयर का उतना पे कर देने का और जो भी गारंटी ली है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप पे कर देने का. क्लियर है? चौथा क्या था? अनलिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड लायबिलिटी. नाम से ही बहुत क्लियर है कि लायबिलिटी किसकी क्या होगी? किसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी? मेंबर्स की. दिस मेंबर्स आर सब्सक्राइबर ऑफ कंपनी. मींस दोज हु हैव साइंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी. जो कंपनी के मालिक रहे हैं, कंपनी के मेंबर्स रहे हैं, इनकी लायबिलिटी क्या नहीं होगी? अनलिमिटेड. बहुत सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ. अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को ली है, ठीक है, आप दोनों ने मिलकर, और इनके अंदर जब फर्म डूबती है तो फर्म को 1 करोड़ का नुकसान होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फर्म लाइक सपोर्ट एंड फर्म गॉट लॉस ऑफ 1 करोड़ रुपीज. हाउ मच यू बी गोइंग टू पे? 50-50 मींस व्हाटएवर द डील व्हिच इज बीन देयर, 60-40 का रेशियो होगा, 70-30 का रेशियो होगा, 20-50 का रेशियो होगा, उतना आप पे करोगे. आप बोल सकते हो कि नहीं शेयर्स नहीं है, गारंटी नहीं है, जितना लॉस होगा आपको पे करना पड़ेगा. एग्री? सो अनलिमिटेड लायबिलिटी, the liability of member is what? Unlimited to the amount which company suffered damages. But ये liability arise कब होगी? When this liability arise? In case of winding up of company. दोबारा मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे, अब इसे समझने के लिए. लास्ट क्या है?
फिक्सेशन, इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल हर कोई देता है। परपेचुअल का मतलब होता है, लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ ऑल द मेंबर्स ऑफ कंपनी डाई बट स्टिल कंपनी विल गोइंग टू एग्जिस्ट, कंपनी विल गोइंग टू कंटिन्यू। फेस क्या है? मेंबर्स आते हैं जाते हैं बट कंपनी चलती रहती है, कंपनी कंटिन्यूस। मेंबर्स में कम और गो बट कंपनी कंटिन्यूस। इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वन कंपनी कॉल्ड ए बोर्ड मीटिंग, ठीक है, ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड शेयरहोल्डर। इन दैट बोर्ड मीटिंग द हाइड्रोजन बॉम्ब फॉर्म एंड ऑल द मेंबर्स एंड शेयरहोल्डर डाइड ऑन द स्पॉट। कंपनी कॉल्ड ए बोर्ड मीटिंग ऑफ ऑल मेंबर्स एंड शेयरहोल्डर, ठीक है, सडनली हाइड्रोजन बॉम्ब फॉल ऑन दैट बोर्ड मीटिंग एंड ऑल द मेंबर शेयरहोल्डर डाइड ऑन द स्पॉट, सब मर गए। अब बताओ कंपनी बंद हो जाएगी या चलेगी? सब मर गए, every person died, all the member shareholder died. Did company close to end or it continue? It continue. Why? Company is artificial person. Company is separate person. Owner and member are separate person. So limited liability हमने डिस्कस किया। liability क्या होगी? शेयर्स के लिमिटेड to the unpaid amount which is not being paid by the members. अगर 100 रुपीज़ का शेयर है, आपने 80 रुपीज़ पे कर दिया है, तो कंपनी कितना अमाउंट कॉल कर सकती है? रिमेनिंग 20 रुपीज़। लिमिटेड बाय गारंटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द गारंटी व्हिच दे हैव टेकन, और ये अराइज कब होगी? इन केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी। जब कंपनी वाइंड हो जाएगी तब लायबिलिटी अराइज होगी। लिमिटेड बाय शेयर एंड गारंटी का मतलब क्या होता है? द लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड टू द शेयर एज वेल एज गारंटी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है? शुरू से लेकर like till last the liability of members are limited, but arise कब होगी? in case of winding up of company, जब कंपनी बंद होगी तभी liability arise होगी, उसके पहले liability arise नहीं होगी। is that clear? ठीक है, this thing we discuss this right now. coming to the case of Solomon versus Solomon. Solomon बाबा जी का केस डिस्कस करते हैं। अगर एक बार बाबा जी के नाम से याद रखेंगे ना, it will be very easy for you to remember. else Solomon कौन था वो आपको याद नहीं है, थोड़ी बहुत आपको मस्ती करनी है बीच में। Do you remember Solomon company? He is having the boot manufacturing business. उसका boot का बहुत ही अच्छा business है। जब भी कोई केस को याद करते हो तो हमेशा उसको स्टोरी की तरह याद करो। It would be very easy for you. Don't go for this company sentence which is being given over here. Try to remember what I am telling you. Solomon is having what business? Boot manufacturing business. तो उसने सोचा एक कंपनी फॉर्म करना है। He had formed a company. एक कंपनी फॉर्म किया, Solomon and Solomon कंपनी के नाम से एक कंपनी खोली। After forming company, what he does, उसने सारे शेयर्स जो थे, ठीक है, कुछ अपनी वाइफ के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, कुछ उनके नाम पे ट्रांसफर कर दिया, टोटल ऑल ओवर कंपनी की टोटल वर्थ निकल गया है $40,000, फॉर एग्जांपल $39,000। आउट ऑफ द $39,000 सोलोमन ने क्या किया? टोटल ट्रांसैक्शन जो पे किया वो पे किया शेयर्स के फॉर्म में 20,000 रुपीज़ का, ठीक है। देन 10,000 जो था उसका सेक्योर्ड डिबेंचर था। सेक्योर्ड डिबेंचर का मतलब क्या होता है? जिसपे आपको पहले पे करना पड़ेगा। इन केस ऑफ लायबिलिटी अराइज द फर्स्ट इनिशियल राइट बिलोंग्स टू सेक्योर्ड डिबेंचर। इसमें सिक्योरिटी उनको मिली नहीं है, सो उनको पहले पे करना है और बाद में फिर किसको पे करना है? अनसिक्योर्ड को पे करना है। कैश में पे कर दे रिमेनिंग 9,000 रुपीज़। फिर उसने क्या कुछ शेयर ट्रांसफर करके अपनी वाइफ के और 5 चिल्ड्रंस के नाम पे ट्रांसफर कर। लेकिन और क्या हुआ? उसका बिजनेस चला नहीं और कंपनी डूब गई। कंपनी गॉट वाइंड अप। डूबने के बाद पूरी कंपनी की एसेट कितनी रियलाइज हुई? $6,000। टोटल एसेट ऑफ कंपनी रियलाइज $6,000, ठीक है, और $7,000 हाउ मच? $6,000। अब यहाँ पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आ गया। कौन है? जिनसे सोलोमन ने लोन लिया था, $7,000 का लोन लिया हुआ। सोलोमन ने कहा आप लोग दूर हटिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी गोइंग टू पे यू सेक्योर्ड डिबेंचर, इफ एनी मनी रिमेन आई विल बी गोइंग टू पे यू। कितना पैसा था सोलोमन के पास? $6,000। हाउ मच इज द अनसिक्योर्ड डिबेंचर? $10,000। पहले किसको पे करना है? $10,000 को पे करना है ना। तो जो क्रेडिटर थे उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया। क्रेडिटर वेंट टू कोर्ट क्लेम टू द केस कि जो सिक्योर्ड डिबेंचर है वो सोलोमन खुद है। सोलोमन हिमसेल्फ इज द सिक्योर्ड डिबेंचर, नाउ ही इज टेकिंग बैक हिज मनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। सो व्हाट विल बी गोइंग टू डू? कोर्ट ने डिसीजन दिया जिसको हमने लैंडमार्क केस बोला था अर्लियर। कोर्ट ने ये बताया सोलोमन इज सेपरेट पर्सन एंड सोलोमन एंड कंपनी इज द सेपरेट पर्सन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाटएवर द लोन अमाउंट व्हिच इज बीइंग देयर व्हिच शुड बी repaid to whom? Secured debenture। and what
whatever the amount which will be remaining, it is then paid to unsecured creditor. So केस का लाइन ऑफ डिसीजन ये निकल के आया कि आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना है what company is separate legal entity, this owner is separate person and company is separate person. सेकंड केस डिस्कस करने वाले हैं ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड. ठीक है, अब इसमें क्या था, ली तो जब ली वाज चीफ पायलट के साथ ये बहुत अच्छा पायलट था अपनी छोटी कंपनी, उसने वन मैन कंपनी फॉर्म की और सारे शेयर कंपनी के खुद के नाम पे ट्रांसफर कर दिए. ली हैड फॉर्म वन मैन कंपनी एंड ट्रांसफर्ड ऑल द शेयर इन हिज ओन नेम. ही वाज द मेन पायलट, हिज ओन कंपनी, ही वाज द मेन पायलट. अब उसने क्या किया, खुद को एम्प्लॉय करा दिया कंपनी. ली एक प्रिंसिपल एज एन एम्प्लॉय ऑफ नाम, जब वो अच्छा पायलट था तो खुद एम्प्लॉय बन गया. So tell me one fun day what happened, like while going on duty the aeroplane crashed. Aeroplane crashed हो गया. Lee died on the spot. Then Lee's wife asked for compensation. Lee की wife ने कहा मुझे compensation चाहिए because Lee is the employee of company and he died while performing his duty. वो अपनी जॉब परफॉर्म करते करते मरा है, तो मुझे तो compensation चाहिए. और जो कंपनी के बाकी शेयर होल्डर्स थे, कंपनी की ना वन मैन कंपनी थी, जो कंपनी के शेयर होल्डर्स थे इधर वहाँ, उन्होंने कहा कि ली जो है वो सेपरेट पर्सन था बट स्टिल कंपनी किसकी है, ली की है. वन मैन शो है, वन मैन बिजनेस है, तो उसकी वाइफ को कंपनसेशन नहीं मिलना चाहिए. कोर्ट ने दोबारा डिसीजन दिया, ली इज नॉट सेपरेट पर्सन, ली इज आल्सो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. एज पर लैंडमार्क केस, कंपनी इज सेपरेट पर्सन एंड ओनर इज सेपरेट पर्सन. So Lee widow is entitled for compensation. Lee widow is entitled for compensation. Why? Because Lee is separate person and Lee air farming is separate person. It is for interview. समझ में आया? Tell me yes or no. दोबारा हुआ था. Next side में. Fine. आपका थर्ड केस होगा मैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. ये भी हमने डिस्कस किया था पहले. यहाँ पे क्या होता है, मिस्टर एवंस मैकोरा virtually on all the shares की कंपनी, ठीक है, उसका टिम्बर का बिजनेस होता है, तो वो सारे टिम्बर्स क्या करता है, खुद के नाम पे इंश्योर करता है. वन मिस्टेक व्हिच इज बीइंग मेड बाय मिस्टर मैकोरा वाज ही इंश्योर्ड ऑल द टिम्बर इन हिज ओन नेम. खुद के नाम पे वो रजिस्टर कर लेता है, इंश्योर कर लेता है. अब क्या होता है, उसके घर पे आग लगती है, हाउस ऑन फायर, वेंट ऑन फायर एंड ऑल द टिम्बर बीइंग डिस्ट्रॉयड. सारे टिम्बर जल के खत्म हो जाते हैं, खाक हो जाते हैं. तो मिस्टर मैकोरा asked the insurance company to get back the compensation, get back the claim. So मैकोरा क्लेम कर रहा है इसका इंश्योरेंस कंपनी को कि मुझे compensation चाहिए of whatever the damage which has been happened because of fire. कंपनी बोलती है since the timber belong to whom? Company, not you. So you are not liable for any insurance amount. Since you are not having reasons connected here, you are not having any insurable interest. So you are not eligible for any compensation or claim. हमने डिस्कस किया था सेपरेट प्रॉपर्टी. ओनर की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेपरेट होती है, एंड कंपनी की प्रॉपर्टी क्या होती है, सेपरेट होती है. टिम्बर किसकी प्रॉपर्टी है, कंपनी की प्रॉपर्टी. ओनर कौन है, मिस्टर मैकोरा. उसने गलती क्या करी है, उसने टिम्बर को उनके नाम पे रजिस्टर्ड करवाया, इंश्योर्ड करवाया. नुकसान कौन भरेगा, मिस्टर मैकोरा खुद लॉस पे करेगा, ना कि कंपनी पे करेगा. इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी कंपनी. क्लियर हुआ? सो टेल नो के डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ कंपनी. मीनिंग ऑफ कंपनी हमने क्या पढ़ा, व्हाट एसोसिएशन ऑफ पर्सन. स्पीक लाउडर. एज पर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 कंपनी को डिफाइन किया गया. कंपनी विच इज फॉर्म, बीइंग फॉर्म एंड रजिस्टर्ड this or any existing company. Clause 2 में existing company को हमने define क्या किया, a company which is being formed or registered at any of the company है, ठीक है. Definition given by Justice Lindley. Define क्या किया, association of person है, we contribute क्या करते हैं, this money and money worth is called capital. Capital से वो क्या करते हैं, trading करते हैं. ट्रेडिंग किया तो क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. कि प्रॉफिट किसमें शेयर होता है, मेंबर्स में, इन टर्म्स ऑफ शेयर. रिमेंबर, ठीक है. देन सेकंड
Sit and clap. S for Fraternity. I for association. T for ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, नॉट ओनरशिप. शेयर्स को ट्रांसफर करना है, ओनरशिप को नहीं करना है बाबा. क्लैप. सी फॉर Capacity to sue. सेकंड. Common C. कॉमन सी. एल फॉर ए फॉर आर्टिफिशियल पर्सन एंड पी फॉर परपेचुअल सक्सेशन. इसका मतलब क्या होता है परपेचुअल सक्सेशन का? एनीवन ऑफ यू टेल मी. कंपनी मेंबर्स आते हैं जाते हैं बट कंपनी चलती रहती है, कंपनी कंटिन्यूस. व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल पर्सन? सेपरेट प्रॉपर्टी. ओनर की अलग है, कंपनी की अलग है. केस लॉ कौन सा रहेगा? दिस वन, बैकोरा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1925. करेक्ट. ठीक है. देन सेपरेट लीगल एंटिटी. दो केस लॉ थे. पहला केस लॉ था सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी. टेल मी क्या केस लॉ था? It was a good manufacturer. 1 point correct. Second, उसने कंपनी बनाई. थर्ड, शेयर ट्रांसफर किए किसको? वाइफ एंड चिल्ड्रंस को. टोटल कंसिडरेशन शेयर कितना था? 39,000. उसमें कैश 9,000, सिक्योर्ड डिबेंचर 10,000 एंड रिमेनिंग शेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 20,000. फिर क्या हुआ? कंपनी डूब गई, वाइंड अप. एंड कंपनी कितना एसेट कितना रियलाइज किया? 6,000. रिमेंबर. And how much was unsecured distress? How much was unsecured creditor? 7,000. They come and ask for कि पहले हमको मिलना चाहिए ना कि secured debenture को मिलना चाहिए. कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया? Reason being as company is separate category, the first liability goes to the secured debentors, then the other. second case law was Lee versus Lee Air Farming Limited. केस लॉ क्या था? एम्प्लॉय भी था, पायलट भी था. He met an accident, died on the spot while working on duty. Lee widow asked for compensation. तो कोर्ट का डिसीजन क्या था? You have to use one word also. As company is separate legal entity means ownership is separate and individual is separate. So the person is entitled for compensation and damages wanted. आगे बढ़े. Okay, difference between company and firm. अब इसमें difference बहुत सारे हैं. तो अगर short form बताओ याद करने का या आपको लंबा difference है. What do you want to do? You want to remember the short form or tough way? Easy way or tough way? Easy way. ठीक है. Difference between company and firm. अब इसको हम याद करते हैं यहाँ से. ये याद है सबको? पक्का? Right now we are discussing about difference between what? Company, firm. Firm means what? Partnership firm. First, separate legal entity. Company की खुद की entity होती है, correct? Partnership की नहीं होती है. Second point, separate property. Company की खुद की property होती है, but partners की partners के नाम पे होती है, ना कि firm के नाम पे. फॉर्म की नहीं होती है बट पार्टनर्स की होती है. थर्ड, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप. कंपनी की ओनरशिप अलग होती है एंड मेंबर्स की अलग होती है. मेंबर्स उस चीज को मैनेज करते हैं. ठीक है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं. पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है? पार्टनर खुद मैनेज करते हैं. पार्टनर themselves are the owner of partnership firm. I incorporated association. इसका मतलब मैंने क्या बताया था? Registration is compulsory under Company Act. But partnership firm में registration compulsory नहीं है. It is optional in nature. In Partnership Act, registration is not compulsory. It is optional in nature. अगर registration करवा रहा होगा तो Partnership Act 1932 Partnership Act 1932 में होगा. Else optional है, कोई जरूरी नहीं है. आओ partnership firm कौन कर लो. T, transferability of share. हमने क्या पढ़ा था? In public company shares are freely transferable. ठीक है. Partnership firm में भी shares are freely transferable, but after transfer, the person doesn't become the partner of company.
दोबारा बोल रहा हूँ, इन ए पब्लिक कंपनी शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफर। विभूति ने, आस्था ने या प्रीति ने, ठीक है, रिलायंस कंपनी के शेयर्स खरीद लिए 1000, तो वो क्या बन गए? दे बिकम द ओनर ऑफ द कंपनी ऑफ 1000 शेयर ऑफ ईच। बट माया पॉलिटिकल की जो पार्टनरशिप फॉर्म थे, उन्होंने कुछ शेयर मुझे ट्रांसफर कर दिए, तो क्या मैं इनकी फर्म का पार्टनर बन गया? नहीं बना। दिस इज द मेन डिफरेंस। फाइन, सिंपल है, समझ में आ रहा है? यस और नो? Yes, sir. Means in public company shares are freely transferable and member become the owner. But in private company, in partnership firm, shares are also freely transferable. But member doesn't become the owner, partner. Next है क्लब। इसमें दो वर्ड थे, वन था कॉमन सील। कंपनी की कॉमन सील होती है जिसे हमने कहा सिग्नेचर। पार्टनरशिप में कोई कॉमन सील नहीं होती है। कैपेसिटी टू sue and to be sued means you can sue the company in its own name, but partnership फॉर्म में किसे sue करोगे? पार्टनर्स को करोगे, ना कि पार्टनरशिप फॉर्म को करोगे। क्लियर हुआ? Limited liability. The liability of company is what? Limited. Limited to what? Shares or guarantee. But in case of partnership firm, liability is unlimited. है ना? कितने पॉइंट्स हो गए? 8, 9. Artificial person. Companies are artificial person, but partners are real person. है ना? दो लोग मिलके आपस में फॉर्म बना रहे हैं, और फॉर्म का नाम AAP पार्टनरशिप फॉर्म है। P, perpetual succession means members may come and go, but company continues. but अगर दो लोगों की पार्टनरशिप फॉर्म और एक मर गया तो पार्टनरशिप फॉर्म रहेगी? It dissolve. 10 डिफरेंस याद हो गए आपको यहाँ से? Yes, sir. गुड, इजी है कि नहीं? आगे बढ़ते हैं और डिफरेंस याद करें। आते हैं जस्टिस लिंडे की डेफिनेशन की तरफ। कंपनी क्या थी? एसोसिएशन ऑफ पर्सन, है ना? कंपनी इज व्हाट? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। जैसे हमने क्या बोला? मेंबर्स। पार्टनरशिप भी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, करेक्ट? जिसे हम बोलते हैं पार्टनर्स। अब इसको ध्यान से सुनना। देयर आर टू काइंड ऑफ कंपनी, वन इज पब्लिक कंपनी, सेकंड इज प्राइवेट कंपनी। इन पब्लिक कंपनी, नेक्स्ट डिफरेंस बता रहा हूं, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड हाउ मच? 2. In public company, the minimum number of members are required 7, not 2. क्यों स्टूपिड वाली हरकत कर रहे हो? है ना? But in private company, the minimum number of members are required 2. In case of partnership firm, how many minimum number of members are required? 2. बस क्लियर है? एक डिफरेंस निकल के आया। Means minimum number of member. Public company में कितना चाहिए? 7. Private company में 2. But in case of partnership firm, only 2 members are required. ये difference कौन सा होगा? 11th वाला। Second, maximum number of member. In case of public company, there is no maximum limit. But in case of partnership firm, in case of private company, there is 50. है ना? Maximum कितना चाहिए? 50 members चाहिए। उससे ऊपर अगर होंगे तो क्या होगा? Public हो जाएगा। ठीक है? Good. In case of partnership firm, कोई maximum limit fix है? कोई fix नहीं है। Any number of person can become partner. Clear? Yes or no? Who is there? Get it, sir. तो कितने डिफरेंस निकल गए होंगे? 12. ठीक है। Next. This members contribute what? Money or money worth. ठीक है? This money or money worth is called capital. है ना? What company do? Company do any business activity. ठीक है? And what they would be going to get? Profit or loss? If the company got any profit, profit किसके बीच में शेयर होगा? The profit is being distributed or shared between whom? Between shareholders or members. है ना? Partnership firm में अगर profit होता है तो कौन शेयर करेगा? Partner. But in case of company, if the company want to distribute dividend, then they can distribute dividend. Else it is not compulsory. Means कंपनी को प्रॉफिट शेयर करना कंपलसरी नहीं है अपने मेंबर्स के बीच में, बट फॉर पार्टनरशिप फॉर्म उनका इंटेंशन क्या है? प्रॉफिट कमाना। फॉर दैट पर्पस ओनली दे फॉर्म द पार्टनरशिप फॉर्म ना, सो दे मस्ट बी गोइंग टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ फॉर्म। कितना डिफरेंस निकल के आ गया? 13 वन के। आई थिंक इट इज मोर देन सफिशिएंट ना, इतना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो कुड यू टेल मी डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी फर्स्ट? सेकंड क्लैरिटी अंडर फर्स्ट। हाँ, व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी? कंपनी की अपनी एंटिटी है, पार्टनरशिप फॉर्म की है या नहीं है? नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म डोंट हैव एनी एंटिटी।
पार्टनर्स की होती है, ना कि फर्म की होती है। ध्यान रखो, पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर्स जो होते हैं पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करते हैं। इसलिए मैं डिस्कस करेंगे। थर्ड, सेपरेट प्रॉपर्टी मींस कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी होती है, मेंबर्स की खुद की होती है। और यहाँ पे किसकी प्रॉपर्टी होगी? पार्टनर्स की होगी। फोर्थ, कंपनी किस एक्ट में होगी? It is not compulsory, it is optional in nature. If at all they want to register, then they could register it for Partnership Act 1990. Fifth, transferability of share or transfer of share. Tell me. Public company. Public company can transfer easily. No, they don't become partner in partnership form, but in case of company, they become member of company. They become owner of company. Sorry, not member of company, they become owner of company. Fifth, common seal. Company की common seal होती है. In case of partnership form, it is not there. Next, Capacity to sue and sue. once you can sue the company, and there you can. Next, in case of company, the liability is limited. In case of firm, the liability is unlimited. A. Company is artificial person, but partners are real person now. ठीक है, राम and श्याम है, लखन and next P. Bilateral succession. It means what? Company is one main company, sole proprietorship. If any of the partner dies, it is dissolved. It is dissolved. 10 points हो गया. 11th में minimum कितना? 7 in case of what? Public. Private के लिए? 2. In case of firm, minimum member? 2. Maximum? No limit. 15. In case of partnership firm, no limit नहीं. पक्का? 100% sure? अगर याद होगा, मैंने कभी बताया था, 10 member in case of banking business and 20 member in case of channel business. So there are maximum limit clause. There must be 10 member in case of banking business and 20 member in case of channel business. So partnership form में limit है या मुझे दोबारा बताओ कितनी है? 10 member in case of banking, 20 member in case of. अगर there are more than 10 member in if there are more than 10 member in case of banking business or more than 20 member in case of general business, तो partnership form क्या हो जाएगा? Dissolve नहीं होगी, illegal हो जाएगी. Dissolve नहीं होगी, वो illegal हो जाएगा. Okay. तो ये कौन सा difference था? 12 था. Last difference क्या होगा? Sharing of profit. हाँ. Sharing of profit company क्या जरूरी compulsory है? No, Is it compulsory for company to share the profit in terms of dividend? No. But for partnership form, It's compulsory. it's compulsory. अच्छा, एक और पॉइंट जो कि बहुत जरूरी है, म्यूचुअल एजेंसी. Every partner is agent of another partner, not company. In partnership firm, every partner is agent of another partner. What do you mean by agent of another partner? Means one partner can sign contract on behalf of company partnership firm. एक partner contract sign कर सकता है पूरी firm के behalf में, and all the partners will be held liable. All the partners will be held binding. Binding means liable. But in case of company, if a member sign document on behalf of company, he shall be held personally liable. The company doesn't shall be held liable. If a member sign document on behalf of company without his consent, बिना company की consent के जब वो sign करता है, तो कौन liable होगा? That member will be held personally liable, not the whole company. ये extra point था, याद रखोगे. It's okay, okay, मेरे पास बहुत एक बड़ा number of points आ गए. One more point is there, auditing. In company, auditing is compulsory. Company है भैया, registration हुआ है, but partnership में registration हुआ है नहीं हुआ है? नहीं हुआ है, optional था. So auditing is compulsory or not? No. Auditing is not compulsory. What do you mean by auditing? Critical examination of books of account, which is done by independent person with the help of document, watch or information received. ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है. मींस बुक्स ऑफ अकाउंट का क्रिटिकल एग्जामिनेशन होता है, जो कि ऑथराइज पर्सन करता है, जिसे हम ऑडिटर बोलते हैं, अकाउंटेंट भी बोलते हैं, सीए बोलते हैं. किसके थ्रू करता
पे ही आता है। क्लियर है एकदम? एकदम ब्रेक लेते हैं, टाइम में चेक करें उसके बाद 10-14 20 मिनट्स का एक काम करते हैं, देख लेते हैं आगे सिलेबस में क्या लगा हुआ है। 46 मिनट 20 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, कोई